Good morning students. So again welcome on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to start the remaining example of the exercise 8.1. So in previous two video lecture we completed first 5 examples and the definition of Bernoulli trial binomial distribution. So this topic binomial distribution is 5 marks for the board examination. So today I am going to start the next example, that is example number 6, 7 and 8. So read the example number 6. In a bag consists of 8 10 balls, each marked with one of the digit 0 to 9. एक बैग में 10 बॉल है, उसको नंबर करना है 0 to 9. So 10 ही बनेंगे. If 4 balls are drawn successively, so 4 balls ही draw करना है. So in n is equal to how much? 4. With replacement from the bag, what is the probability that none is marked with the digit 0? So with the digit 0, mark with the digit 0, this is our success, right? So first of all, write the solution of example number 6 starting from x. Define first of all x. Let x is number of balls marked with the digit 4. Number of balls marked with the digit 0. So इसकी probability find करना है. Probability of drawing a ball mark with the digit 0. So probability is 1 by 10. Why 1 by 10? Because there are 10 balls. So 10 balls को 0 to 9 नंबरिंग करनी है. So 0 नंबर एक ही बॉल को होगा आउट ऑफ 10. So पहला बॉल 0 है, दूसरा बॉल 1, तीसरा बॉल 2, 9, 10th बॉल इज 9. So 0 to 9 that is the numbering. So उसमें से एक ही बॉल है, उसका नंबर 0 है, मार्क बाय द डिजिट 0. So P is equal to 1 by 10. So definitely Q 9 by 10 बनेगा. Q is 9 by 10 because 1 minus P, 1 minus 1 by 10, it's surely 9 by 10. So this is a Q. So 4 balls are drawn, so n is equal to 4. X follows binomial distribution with 2 parameters n comma p. X follows binomial distribution, n is equal to 4 and p is equal to 1 by 10. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. इसके बाद हम क्या लिखते हैं? द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. Probability mass function of discrete random variable x is, so probability of x is equal to small x, n cx, p raised to x, q raised to n minus x. So यहाँ पर probability x is equal to x, n is 4 cx, p is 1 by 10, 1 by 10 raised to x, q is 9 by 10 raised to 4 minus x. X from 0 to 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. अब ये प्रोसेस सब एग्जाम्पल की सेम है. What should be write? The first line, second line, third line. n लिखना, p, q लिखना. P is 1 by 10. Why 1 by 10? Because there are 10 balls numbered from 0 to digit 0 to 9. So 0 डिजिट की प्रोबेबिलिटी, 0 डिजिट जिस बॉल पे नंबर है वो एक ही बॉल है आउट ऑफ 10. सो 1 by 10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. सो ये सब लिखना है. उसके बाद जो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क विथ द digit 0. It means we have to find probability x is equal to 0. Number of ball mark with the digit 0. एक ही बॉल है, सो बॉल्स लिखने की जरूरत नहीं. सो देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखो. दिस इज अ 4c0.
1 by 10 raised to 0, 9 by 10 raised to 4 minus 0 is 4. So this is 1 into 1 into 9 by 10 raised to 4. So answer is 9 by 10 raised to 4. So this is a probability at x is equal to 0. So देखो ये वर्ड एग्जाम्पल्स है, वर्बल फॉर्म में एग्जाम्पल्स, और आंसर भी वर्बल फॉर्म में लिखना जरूरी है. सो आप लिख सकते हैं एवरी टाइम. सो देयरफॉर probability of none probability of balls, probability of none is mark, none is mark with the digit 0 is 9 by 10 raised to 4. ये उसका आंसर. सो ऐसे लास्ट में हम वर्ड बेस में सॉल्यूशन आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल वर्ड बेस में है, वर्बल फॉर्म में, तो ऐसा लिखो. 2 या 3 मार्क के लिए एग्जाम्पल आ सकता है. सो 2 ही मार्क का एग्जाम्पल, बिकॉज वन सिंगल क्वेश्चन है, नन एक्स इज इक्वल टू 0. सो विल टेक एग्जाम्पल नंबर नाउ 7 नंबर एग्जाम्पल. 6 तो बहुत सिंपल था. हर एक एग्जाम्पल सिंपल है, सिर्फ को आपको आइडेंटिफाई करना है x क्या है, p क्या है, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. हमें क्या फाइंड करना है, ये अगर इसका जजमेंट आ गया तो ये एग्जाम्पल हर एक स्टूडेंट को सॉल्व करने को आएगा 3 to 4 मार्क के लिए. लेट अस सी द एग्जाम्पल नंबर 4. अब ये सब हर टाइम हम फाइंड करते हैं. सो आप ये डायरेक्टली कॉपी करो यहां पर, देखो क्या क्या होता है आगे. सो तब तक आप एग्जाम्पल नंबर 7 रीड करो. ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन. मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन मीन्स इट इज ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन. सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 2 टाइप के एग्जाम होते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम्पल सब्जेक्टिव होते हैं, और एमएसटी, सीईटी, जेईई, नीट एग्जाम सब ऑब्जेक्टिव होते हैं. ऑब्जेक्टिव मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स. 3 ही ऑप्शन है, जैसे एमएसटी, सीईटी, नीट में, जेईई में 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD यहाँ पर. बट इन दिस एग्जाम्पल ही हैज गिवन 3 आंसर्स, पॉसिबल आंसर्स. फॉर तीनों भी पॉसिबल आंसर्स में कैसे होते हैं, एक बहुत ही नियरेस्ट टू आंसर्स होते हैं, बहुत ही क्लोज टू आंसर्स होते हैं. फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस, फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हियर ही हैज गिवन n इज इक्वल टू 5. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स. 4 और मोर, 4 और 4 से ज्यादा. सो x number of correct answers, that is success, number of correct answers. P example number 7, उसका solution start हुआ है. P probability of getting correct answers on a multiple choice एग्जामिनेशन. देखो ऐसा. सो प्रोबेबिलिटी कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, उसमें करेक्ट कितना आएगा, ये क्या आएगा, ये क्या आंसर करेक्ट होता है 3 ऑप्शन में से ABC में. सो P इज 1/3 हो गया. सो व्हाट विल बी Q इज डेफिनेट 2/3. दोनों के एडिशन वर्ड आना चाहिए. Q का फॉर्मूला लिखो 1 minus P, 1 minus 1/3, 3 minus 1 2/3 आएगा. So what will be here, n is equal to 5. How much questions are there? 5 questions are there. So 3 value important, P, Q and n. Then x follow, ये सब लिखना है. n की वैल्यू कितनी है, 5 है. n की वैल्यू 5, p कितना है 1/3. सो ये p आना चाहिए. p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर.
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर। सो एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है, उसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, दो ऑप्शन कभी करेक्ट नहीं होते, तीनों भी नहीं होते करेक्ट। ऐसे कुछ दूसरे एग्जामिनेशन होते हैं भी है कि जहां पर 1 2 3 भी करेक्ट आंसर, बट ये थोड़ा अपना रेगुलर मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है। यहाँ पर एक ही करेक्ट आंसर है 1/3, सो Q is 2/3, Q is not getting करेक्ट आंसर, सो 2/3। सो ये प्रोसीजर है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? सो n इज 5 C x, p is 1/3 raised to x, q is 2/3, 2/3 raised to 5 minus x. 5 questions are there. So x 0 to 5, x takes the value 0 to 5. So what is now question? हमें क्या find करना? What we have to find here? What is the probability that a candidate would get 4 or more correct answer? Getting probability of getting 4 or more correct answers, 4 or more correct answers, 4 और 4 से ज्यादा करेक्ट आंसर्स आना चाहिए। सो इसका मीनिंग क्या है? वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मीन्स 4 and 5. So that is therefore it is equal to 5C4 1/3 raised to 4 2/3 raised to 5 minus 4 1 plus 5C5 1/3 raised to 5 2/3 raised to 0. 1/3, 2/3 is the value of P and Q, which is same in both. X 4, 5 minus 4 1, 5 minus 5 0, वहां पर x 5 है। सो पैटर्न अब इसको सॉल्व करेंगे। 5C4 5C1 होता है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, 5 minus 4 1 होता है। सो इट्स 1/4, 3 raised to 4, 3 raised to 1, it is 3 raised to 5. Numerator 2 raised to 1. 5C0, 5 minus 5 0, 1 raised to 5, 2 raised to 0 is 1. This is 3 raised to 5. Got it? अभी कैलकुलेशन का पार्ट है। 5 into 2 divided by 3 raised to 5, 1 into 1 divided by 3 raised to 5. 5C01 होता है, 5C1 5 होता है, 2 raised to 1 2, 1 raised to 1 1. So now here is 3 raised to 5 is denominator same, 5 plus 2 10, 5 into 2 10, 10 plus 1, it's 11 by 3 raised to 5. That is the probability which x is greater than or equal to 4. ये उसका आंसर 11 by 3 raised to 5. एक ही क्वेश्चन था, उसका ये आंसर। अब आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, आपको आंसर कैसे फाइंड करना है सब लिखना जरूरी है। सो ये जो पैटर्न है एग्जैक्टली सेम फॉर एवरी एग्जाम्पल। ओके, क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कितने 0 डिजिट के बॉल है? एक ही है, सो 1/10 ये उसकी P है। यहाँ पर 1/3 क्योंकि P x इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर। सो एक ही करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन। So it's 1/3 because 3 ऑप्शन है। So by guessing दिया है, so बाकी ये स्टोरी doesn't matter for us. So by guessing किया है कि उसने सॉल्व करके किया है, it is just a question. So candidate will get the 4 or more correct answer just by guessing, just by solve, just by copy. We doesn't care. We don't care about that. So this is the solution. Okay. So this is the example number 6 and 7. ये 2 example हुए. We will take the next example, example number 8 immediately after this. So copy it. Now let us see the example number 8. In example number 8, a person buys a lottery ticket in 50 lotteries. 50 lotteries दी, so n is equal to 50. Person buys 1 ticket, a lottery ticket. In each of his
in each of which his chance of winning a prize, chance means probability, so probability of winning prize is 1/100. So that is a given what P is equal to 1/100. So ये understand होना जरूरी है कि what he has given. So 50 lotteries means n is equal to 50 and winning prize की probability 1/100 है. So P is 1/100, so obviously Q is 99/100. So n is equal to 50, P is equal to 1/100, Q is equal to 99/100. ये सब given data. Now what we have to find? Find the probability that he will win a prize. At least one, exactly one, at least twice. ये तो बहुत बार हुआ है. So simple process to write the solution. So first up I'll write the solution of example number 6. This is solution. एक ही example यहाँ पर. So let x number of winning prize, नंबर ऑफ विनिंग प्राइस. सो एक जो रैंडम वेरिएबल उसका पहला वर्ड नंबर ऑफ ही होना चाहिए, बिकॉज दिस एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का स्टार्ट नंबर ऑफ ही होना चाहिए. दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, वहाँ पे प्राइस होती है, हाइट, वेट, मेजरमेंट, दैट इज अ स्ट्राइक रेट, एवरेज, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. बट दिस इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उसका फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ. सो प्रोबेबिलिटी of winning prize. So P is equal to 1/100. Q is equal to 1 minus P. 1 minus P. So this implies Q is equal to 1 minus 1/100. So therefore Q is equal to 99/100. डायरेक्ट भी लिखा तो भी चलेगा, इसको कोई ऐसा पर्टिकुलर मार्क्स नहीं है. P Q सिंपल. n is equal to 50, which everything is given. Now x follows binomial distribution with np, two parameters. n is equal to 50, P is 1/100. Then the probability mass function of x is, probability mass function of x is, so write the formula. X is equal to x, ncx p raised to x, q raised to n minus x. So here probability x is equal to x, n is 50, 50 cx, 1/100 raised to x, 99/100, 50 minus x. So x takes the values 0, 1, 2, 3, 4 up to 50. 50 भी चांस हो सकता है विनिंग का. So x takes the values 0, 1, 2, 3 up to 50. So what is the first question here? At least once. We have to find the probability. At least once. कम से कम एक means probability we have to find x is greater than or equal to 1. कम से कम एक means 1, 2, 3, 4 up to 50. 50 सब के सब टिकट भी विनिंग प्राइस हो सकती है. It means we have to find probability x is equal to 1 minus x is equal to 0. ये उसका ये कंडीशन है. अगर 1 से 50 फाइंड करने से सबसे इजी क्या है? सो दिस माइनस x इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू इतना फाइंड करना है हमें. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, ये भी फाइंड किया तो चलेगा टू बी सेम. सो दिस इज 1 माइनस 50 C0, 1/100 raised to 0, 99/100 raised to 50 minus 0 is 50. So 1 minus 1 into 1 minus 1 into 1 into 99/100 raised to 50. So answer 1 minus 99/100 raised to 50. This is probability
getting at least one winning prize. So this answer of example number first. Now example number second. Exactly one. Exactly one. It means we have to find probability x is equal to 1. एक ही exactly once, एक ही winning prize होना चाहिए. Exactly one. उसकी probability find करना है. So use the same formula. 50C1 1 by 100 raised to 1, 19 by 100 raised to 50 minus 1 49. इसमें x की जगह पर 1 रखा है सिर्फ. 50 minus 1 is 49. अब ये स्पीड से कैलकुलेशन आना चाहिए. यहाँ पर कोई भी डिफिकल्टी आना नहीं चाहिए कैलकुलेशन में, बिकॉज अब बहुत प्रैक्टिस हुई. एग्जाम्पल नंबर 8 चल रहा है. कुछ एग्जाम्पल में 4 5 एग्जाम्पल थे. 50C1 is 50, 1 by 100, 19 by 100 raised to 49. ये 1 by 2 हो जाएगा. 1 by 2, 99 by 100 raised to 49. This is probability x is equal to 1. Example number 3. ये उसका आंसर. इतना ही लिखना है. एग्जाम में भी इतना लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज हियर टारगेट इज नॉट फाइंड द कैलकुलेशन इज नॉट टारगेट. आवर टारगेट इज व्हाट? दिस. प्रोबेबिलिटी इज आवर टारगेट. इसका तो कैलकुलेशन एग्जाम में दे सकते हैं. एग्जाम्पल में इसकी वैल्यू अगर डायरेक्टली ब्रैकेट में दी है व्हाट एवर इट में भी, तो उसको सिर्फ 1/2 से मल्टीप्लाई करना है. ओके. सो नाउ फोकस ऑन द एग्जाम्पल नंबर 3. एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2. सो प्रोबेबिलिटी at least twice. Most what we have to find? X is greater than or equal to 2. X is greater than or equal to 2 का मीनिंग क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इन ब्रैकेट प्रोबेबिलिटी x is equal to 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x is equal to what? 1. 2 से 50 तक इतना निकालना पॉसिबल नहीं. सो बेस्ट वे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 50. यहां तक सब प्रोबेबिलिटी की सम कितनी आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए. सो इतना जो फाइंड करना है, सो ये ट्रांसफर करो. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1. अब ये कैलकुलेशन 1 minus 50C0 1 by 100 raised to 0, 99 by 100 raised to 50 plus 50C1 1 by 100 raised to 1, 99 by 100 raised to 49. अभी ये फाइंड किया 1 की और 0 की फाइंड की, शायद ये 0 की प्रोबेबिलिटी. सो वही कॉपी करेंगे यहाँ पर. 1 माइनस 99 by 100 raised to 50 प्लस इसकी फाइंड की थी है 1/2 99 by 100 raised to 49. अब इसको थोड़ा क्लियरली सॉल्व करेंगे. इसको ब्रैकेट करेंगे बिकॉज माइनस साइन है बाहर. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, वहां पर कॉमन निकाल सकते हैं 99 by 100 raised to 49. 99 by 100 raised to 49 in bracket 99 by 100 plus 1/2. 1/2 means 50 by 100. कैलकुलेशन है 1 minus 99 by 100 raised to 49 in bracket 149 divided by 100. ये उसका आंसर. प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.
यहाँ से 99/100:49, 99/100:49, यहाँ पर 99/100 रहेगा, यहाँ पर 1/2 था। सो उस 1/2 को मैंने कैसे कन्वर्ट किया, 50/100। 50/100 1/2 ही होता है, बट कैलकुलेशन के लिए डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो ये इजी जाएगा। 99 + 50 149। सो यही उसका करेक्ट आंसर, इतना तक ही लिखो। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड ऑफ एग्जाम्पल नंबर 8। दिस इज अबाउट लॉटरी टिकट। सबसे इंपॉर्टेंट ये P, Q, N 50 लॉटरी का है, उसमें से एक लॉटरी निकालना है और विनिंग चांस कितना है, 1/100। सो विनिंग चांस इज द आवर प्रोबेबिलिटी P, सक्सेस। So first, second and third. So copied, this is example number 8. So और 4 example बाकी है, 9, 10, 11 and 12. So we'll see on the next video lecture. So today is sufficient for this video lecture. We'll stop here. Thank you very much.